Hello everyone and dear students, welcome to my channel The Pharma Pathshala and myself Surji Singh. Today we will discuss about the topic hospital and its function. So this topic is included in the syllabus of the subject pharmacy practice and the subject hospital and clinical pharmacy. In which the subject of the pharmacy practice is for the students of the B.Pharm 4th year and the subject hospital and clinical pharmacy is for the diploma 2nd year students. So before starting this topic, you need to know about that why we are studying this subject. So let's discuss about the scope of the hospital and clinical pharmacy and pharmacy practice. In the changing scenario of the pharmacy practice in India, for successful practice of the hospital pharmacy, the students are required to learn various skills like the drug distribution, drug information, and therapeutic drug monitoring for improved patient care. These skills are necessary for the pharmacy practice in India. In the community pharmacy, students will learn about the various skills of the community pharmacy or pharmacy practice like the dispensing of the drugs and the pharmacy counseling for improving the pharmacy practice in India. Now I am going to describe the objectives of the pharmacy practice and the objectives of the hospital and clinical pharmacy also. The first objective is to know the various drug distribution method in the hospital. And the next objective to appreciate the drug store management and the inventory control. And the third objective to monitor the drug therapy for the patient. Fourth objective to obtain the medication history, and the fifth objective to detect and assess the adverse drug reaction. So students, this is all about the subjects. There are two subjects, which is first one is the pharmacy practice and second one is the hospital and clinical pharmacy. Let's come to the topic now. First topic is the definition of the hospital. What is the definition of the hospital? हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है, हॉस्पिटल को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है. सो यहाँ पे डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन हॉस्पिटल की प्रोवाइड की है. सो द फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO एक्सपर्ट कमिटी इन 1963 is a hospital is a residential establishment which provides short-term and long-term medical care consisting of observational, diagnostic, therapeutic and rehabilitative services for persons suffering or suspected to be suffering from a disease or injury. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने 1963 में हॉस्पिटल को डिफ़ाइन किया. अकॉर्डिंग टू WHO हॉस्पिटल क्या होता है, एक रेसिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट होता है. ठीक है, रेसिडेंशियल का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं. ओके, तो हॉस्पिटल इज़ अ रेसिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट विच प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर. हॉस्पिटल एक वो रहने की जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी डिज़ीज़ जो है उसके लिए आप शॉर्ट टर्म वहाँ पे रह सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वहाँ पर रह सकते हैं मेडिकल केयर के लिए. वो मेडिकल केयर क्या होती है, मेडिकल केयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज. मेडिकल केयर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं. फर्स्ट सर्विस इज़ द ऑब्जर्वेशनल. ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या होता है कि हम उस पेशेंट को फिज़िकल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके डिजीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशनल. ओके, सेकेंड वन इज़ द डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पेशेंट की सिम्टम्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसको कोई टेस्ट बताते हैं, कोई टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोज करते हैं. थर्ड इज़ द थेरेपेटिक. थेरेपेटिक का मतलब होता है कि किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करना. जब हम ऑब्जर्व करते हैं, डायग्नोज करते हैं, इसके बाद ही जब कोई डिजीज़ कंफर्म हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. इसके बाद आती है आपकी रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज.
रिहैबिलिटेशन जो सर्विस होती है उस सर्विस के थ्रू क्या होता है कि हम किसी को नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आते हैं. दैट सर्विस इज कॉल्ड द रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज. ओके, ये क्या था, ये एक डेफिनेशन थी जो कि WHO ने दी थी हॉस्पिटल की डेफिनेशन इन 1963 में. WHO ने जो हॉस्पिटल की डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल क्या है, एक रेसिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट होता है जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मेडिकल सर्विसेज क्या होती हैं? मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडेड द ऑब्जर्वेशनल सर्विसेज, डायग्नोसिस सर्विसेज, थेरेपेटिक एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज. जिसमें से ऑब्जर्वेशनल का मतलब आपको मैंने बता दिया, डायग्नोस्टिक क्या होता है, थेरेपेटिक एंड रिहैबिलिटेटिव. रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू द हेल्थ और नॉर्मल लाइफ. दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द WHO. नेक्स्ट हम आते हैं एक कॉमन डेफिनेशन की तरफ. सो द हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ और a specialized complex organization that makes use of physician, surgeon and team of technical staff in order to provide facility for diagnosis, therapy, rehabilitation, prevention, education and research. सो हॉस्पिटल की एक मॉडिफाइड जो डेफिनीशन है उसमें क्या बताया गया है कि हॉस्पिटल क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है कम्युनिटी हेल्थ का. और या आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फिजिशियन, सर्जन एंड टेक्निकल स्टाफ से मिलकर बना होता है. और ये टेक्निकल स्टाफ क्या करते हैं या हॉस्पिटल कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो फैसिलिटीज़ होती हैं डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च. सो डायग्नोसिस यानी टू रिकॉग्नाइज द डिजीज़ बाय डिफरेंट टेस्ट. थेरेपी क्या होती है, किसी को प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करना. रिहैबिलिटेशन किसी भी पेशेंट को वापस उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आना. ठीक है. प्रिवेंशन यानी कि कोई भी डिजीज़ जो फैली हुई है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोई वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिवेंशन. एंड लास्ट वन इज़ द एजुकेशन एंड रिसर्च. एजुकेशन एंड रिसर्च क्या होता है, मतलब हॉस्पिटल की एक सर्विस ये भी होती है. हॉस्पिटल क्या है, एक एजुकेशन और रिसर्च प्लेस भी है जहाँ पे क्या होता है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च भी कंडक्ट किए जा सकते हैं. तो ये क्या था स्टूडेंट, ये थी डेफिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द WHO एंड अ नॉर्मल मॉडिफाइड डेफिनेशन. द नेक्स्ट टॉपिक अंडर योर सिलेबस इज़ द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पे एक इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देयर आर मेन फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल. फर्स्ट इज़ द हेल्थ, सुपरविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. ओके. सेकेंड वन इज़ द एजुकेशन ऑफ healthcare providers. Third is the rehabilitation. Fourth is the healthcare research, and in between, in the middle, investigation, diagnosis and care of the sick and injured patient. So ये क्या है कि हॉस्पिटल के क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. हॉस्पिटल का फंक्शन एक क्या है, हेल्थ सुपरविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. हेल्थ को सुपरवाइज करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ये क्या है हॉस्पिटल का फंक्शन है. सेकेंड क्या है, एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, डाइटिशियंस, सोशल वर्कर्स. जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, डाइटिशियंस, सोशल वर्कर्स, फार्मासिस्ट भी होते हैं. तो ये क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है. तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी क्या है हॉस्पिटल का फंक्शन होता है. थर्ड वन इज़ द रिहैबिलिटेशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. रिहैबिलिटेशन इज़ द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समवन टू द हेल्थ और समवन टू द नॉर्मल लाइफ. तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी क्या होती हैं हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ द हेल्थ केयर रिसर्च और मेडिकल रिसर्च, यानी कि हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च की जाती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक. जो यहाँ पे रिसर्च होती है वो क्या होती हैं, वो भी क्या है, एक फंक्शन है हॉस्पिटल का. ओके. उसके बाद हम आते हैं वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हॉस्पिटल के. सो फर्स्ट इज़ द टू अपलिफ्ट क्वालिटी ऑफ लॉ एंड जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस.
सो हॉस्पिटल का पहला फंक्शन क्या होता है कि जो भी क्वालिटी है, ठीक है, या जनरल स्टैंडर्ड्स हैं मेडिकल प्रैक्टिसेस के या फिर आपके हॉस्पिटल के, उसको अपलिफ्ट करना, उसको और ऊपर लेके जाना, उसको डे बाय डे मॉडिफाई करते रहना, डे बाय डे उसको बेटर करते रहना। ये क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। सेकेंड फंक्शन इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड गाइडेंस बाय विच पर्सन कैन वर्क इन अ ग्रुप्स with the intention of betterment of hospital department, patient and community। यानी कि क्या है कि जो हॉस्पिटल है उसका एक फंक्शन ये है कि आपको एक एडिक्वेट फैसिलिटी एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी होंगी। किनको? जो पर्सन्स आपके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको आपको प्रॉपर फैसिलिटी एंड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, पेशेंट एंड कम्युनिटी का क्या होता है, बेटरमेंट होता है, वो और भी बेहतर बनते हैं और भी अच्छे बनते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका थर्ड फंक्शन इज़ टू रिड्यूस डिजीज़ अकरेंस बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये आपका फंक्शन, ये भी क्या है, हॉस्पिटल का एक फंक्शन है। क्या करना है कि डिजीज़ के अकरेंस को कम करना। कैसे कम होगा? जब आप किसी भी डिज़ीज़ को अर्ली ही डायग्नोस कर लोगे, बहुत जल्दी ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, डायग्नोस कर लोगे और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दोगे, तो उस डिज़ीज़ के जो अकरेंस के चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये भी क्या है, आपका हॉस्पिटल का एक फंक्शन है। नेक्स्ट वन, टू एस्टिमेट नीड्स फॉर फैसिलिटीज़, सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर इवेल्युएशन, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस। यानी कि एक एस्टिमेट डिसाइड करना, एक अपने हॉस्पिटल का एक एस्टिमेट डिसाइड करना भी क्या होता है, एक हॉस्पिटल का ही फंक्शन होता है। यानी कि आपकी आपने जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, जो सप्लाइज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, टाइम पे उनको इवेल्युएट करना, कैलिब्रेट करना, ये सब क्या है, हॉस्पिटल का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ द टू एस्टिमेट डिपार्टमेंटल नेसेसिटीज़। यानी कि आपके डिपार्टमेंट में टाइम पे क्या है कि डिफरेंट ज़रूरतें, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो उसका भी आपको क्या होता है, एस्टिमेट बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टू प्रोवाइड अ कॉमन लिंक बिटवीन जनरल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर क्या होते हैं, यानी जो अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ रिफर्स टू द डिसीजन, प्लान एंड एक्शन। किसी भी हॉस्पिटल में क्या काम करना है, उनका मेन एम क्या है। जैसे कि कुछ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, आपको पता होगा कि हार्ट के हॉस्पिटल अलग होते हैं, स्किन के अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अपना प्लान डिसाइड करना होता है, एक्शन, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना एक्ट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है टू सजेस्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीडर्स टू मेंटेन एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। यानी कि जो भी आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके हॉस्पिटल के प्रोसीडर्स हैं, उसको क्या है कि आपके स्टाफ को पूरी तरह से पता होना चाहिए, तभी क्या है कि वो स्टाफ बेटर वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ द टू डेवलप एंड मेंटेन एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पे क्या है, टोटल रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल में क्या होता है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करने का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो आपको क्या है, टोटल सारे डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो क्लिनिकल का मतलब पेशेंट रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी क्या होता है, हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज़ टू क्रिएट एंड डेवलप फाइनेंशियल प्लान फॉर द ऑपरेशन ऑफ द हॉस्पिटल। यानी कि समय समय पर क्या होता है कि हॉस्पिटल को एक फाइनेंशियल प्लान बनाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, हॉस्पिटल की जो वर्किंग होती है वो कॉन्टीन्यूअस और अच्छी होती रहती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल इज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ ऑल पीपल। यानी कि हॉस्पिटल का एक फंक्शन ये भी होता है कि हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक प्लेस पर जो पीपल प्रेजेंट हैं उनको हम किसी डिजीज़ के बारे में एजुकेशन दे सकते हैं। उन्हें एक, अगर कोई उस समय उस टाइम कोई ऐसी जो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ फैली हुई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये क्या है कि ये भी आपकी हॉस्पिटल का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ द टू पार्टिसिपेट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स ऑफ
द हॉस्पिटल, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे भी हम अपने हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ को, हॉस्पिटल की वर्किंग को हम और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. And last one is to initiate, utilize and participate in the research projects aim to improvement of the patient care and other hospital services. यानी कि क्या है कि एक हॉस्पिटल का फंक्शन ये भी होता है कि उसको रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, या रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. इससे क्या होता है कि जो पेशेंट, जो हॉस्पिटल की सर्विसेज होती हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं और जो पेशेंट केयर होते हैं वो भी इम्प्रूव होता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉस्पिटल एंड इट्स फंक्शन. जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है और ये कॉमन टॉपिक है आपके D2 के स्टूडेंट्स के लिए एंड B4 के स्टूडेंट्स के लिए. D2 यानी डिप्लोमा सेकेंड ईयर एंड B4 इज़ द B फॉर्म फोर्थ ईयर. तो अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस ये टॉपिक B फॉर्म फोर्थ ईयर में है और डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फार्मा पाठशाला.